So we can start. So the question states, which graph represents the number of unpaired p orbital electrons for atoms with proton number 13 to 18? तो अब वो 13 से ना शुरू करे और 18 तक. Proton number 13. Proton number 13 is actually group 3. ठीक है, एल्यूमिनियम होता है. तो मुझे लगता है कि ग्रुप 3 से वो स्टार्ट कर रहा है, ग्रुप 4, 5. So I'm not going to write down all the electronic configuration. You've got group, group 5 and so on, 6, 7, 8. 3 की electronic configuration outermost shell की is S2P1, and then you've got S2P2. फिर S2 P3 होता है 5 पे. 6 would be S2 and P4. 7 would be S2 and P5. And you've got noble gases. ये सारे अब 13, 14, 15, 16 है. That would be S2P6. Now the question is number of unpaired electrons. मुझे बताओ कि first one. How many unpaired? 1 second. The very first one. How many unpaired electrons you've got? तो P में सिर्फ एक electron होगा. Just one, right? But P subshell will have 3 orbitals. So if it only has 1 electron, so there's 1 unpaired, ठीक है? फिर if P has 2, तो इसका मतलब है there would be 1 in Px and Py. Pz would be empty. तो 2 unpaired होंगे. If there are 3, so that would be 1, 2, and 3. So इसका मतलब the graph would be increasing. जिस तरह ये 13, 14, 15, 13, 14, 15, it would be increasing. यहाँ पे भी it's increasing. It can't be this one. Decrease नहीं होगा. So we're at group 5, so it's 1 each now. 3 unpaired. 6 के ऊपर क्या होगा? How many unpaired? Okay, if you're in group 6, ठीक है, क्योंकि P4 है, so the first one would become paired. So now you're going to have 2 unpaired. तो वापस नीचे जाना शुरू हो गया. अगर 5 होगा तो now there's going to be 5 electrons, so now there's only 1 unpaired. और 6 के ऊपर जाके ना it would be completely filled. So now it's going to be 0. So the graph would look like this. Okay, it would go up and then it would come down back again. Okay, is this clear? As in, clear? Yes or no? Yes, sir. So now the next one. What could be the proton number of an element that has 3 unpaired electrons in each of its atoms? So basically it would be S2 and P3. This would be group 5. Any element that's in group 5. Okay. Don't write down all the electronic configuration. Okay, save time. Group 5 is S2P3. Group 5 has 3 unpaired orbitals in its outer shell. So group 5 में कौन होगा? It's going to be 15 proton. That's phosphorus. ठीक है, that's group 5. ये scandium है. That's a transition. वो D block element में आ जाता है transition वाले में. This is aluminium. This is boron. ठीक है, these are group 3 elements. This is group 5. ठीक है, 15 की electronic configuration आप लिख भी लो. अगर पूरी लिखनी है तो it's 1s2, 2s2, 2p6. Then it's going to be 3s2 and 3 electrons remaining. So it's going to be the outermost shell would be S2 and P3. But always try to save time. अच्छा, ये जल्दी से by looking at the electronic configuration, can you tell which group this is in? सर ये noble gas है तो D होगा. ठीक है, तो it's a noble gas, so it's going to be D. ठीक है, so that's going to be D. S2P6 आ रहा है इनमें. So that's a noble gas. अच्छा, फिर again, which pair do both species have the same number of unpaired p electrons? Same number of unpaired p electrons. Now again, या तो टाइम जाया करो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में. Oxygen is in group 6. तो group 6 क्या होगा? Like what's the electronic configuration of group 6? It's going to be
S2 and P4, मतलब नोबल गैस से दो पीछे आ जाओ ना, तो इट्स गोइंग टू बी S2P4. Cl is group 7, so it should be S2 and P5, but there is +1. +1 का मतलब है it has lost one electron, so that means ये भी S2P4 होगा. तो दोनों की जो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, that comes out to be exactly the same. So they will have the same number of क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही सेम है. So is the first one clear? Yes, sir. ये क्लियर है पहला? अच्छा, so that's the first one. Second पे आ जाओ. Fluorine is again group 7. So group 7 would be S2P5 end में जाके, लेकिन it's +1, so that means कि one electron is lost. So it's going to be S2P4. अच्छा, गैलियम, आई थिंक गैलियम कहाँ पे है, उसके लिए देखना पड़ेगा. ग्रुप 3 में शायद. Just 1 second. ठीक है, make sure you have a periodic table next to you. So gallium is, कहाँ पे था periodic table, 1 second. अच्छा, तो gallium is group 3. ठीक है, so that is group 3. तो group 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? It's S2P1. But gallium has a charge of -1, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, so it's going to be S2 and P2. So I've gotten the electronic configuration of both these atoms. So the question is, do they have the same number of unpaired p electrons or not? Do they, or do they? क्या होगा इसका आंसर? Do they have or do Yes, they? sir. Yes. ठीक है, exactly, क्योंकि दोनों के पास दो होंगे. P4 means कि there's going to be Px, Py and Pz, and 4 means कि 2 1 1. तो इसका मतलब है 2 1 1, इसको हटा दें. So it's going to be 2 1 1. So that is clearly 2 unpaired. ठीक है, one of them is paired. और ये वैसी P2 है. P2 का मतलब है कि Px, Py and Pz orbitals होंगे, one in each of them, and the last one would be 0. So that is 2 unpaired. उसने number of unpaired ही पूछा, so that's 2 unpaired. तो इसका मतलब है 2 is also correct. They have exactly the same. पहला तो बिल्कुल ही correct था, क्योंकि the first one was easy क्योंकि they had exactly the same electronic configuration. The second one, the electronic configuration was different, but the number of unpaired is the same. And the last one, phosphorus, is group 5. Group 5 का मतलब है कि it's going to be S2P3, right? So that is what group 5 is. So that means 3 unpaired. ठीक है, one in each of them. Neon is a noble gas, so it should be S2P6, but since it's +1, तो इसका मतलब है it will actually have 5 electrons. तो अच्छा, the number of unpaired is clearly different क्योंकि this one will have 3 of them would be unpaired. Over here there would be just one that would be unpaired. मतलब एक ही orbital होगा जो full नहीं हुआ होगा, but the rest are all completely full. So number 3 is wrong. So is this also clear? Clear है? Yes or no? जी सर. मुझे ये 2 नहीं समझ में आया, F+ वाला. नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो समझ आ गई थी ना कि it's S2P5 but it's +1, तो it's going to be S2P4. Is that? और गैलियम ग्रुप 3 में था. ग्रुप 3 by default is S2P1, लेकिन it's -1, तो that means it's going to be S2P2. मतलब there would be one extra electron. ठीक है, तो P4 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि one in each of them, और फिर पहले वाले में 2 होंगे. ये क्लियर है? यस सर. और अगर 2 हो सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो Px, Py, Pz, तो एक एक होगा इनमें, और तीसरा जो होगा वो खाली होगा. ठीक है, तो याद है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता लग गई है ना दोनों की, राइट? यस सर. तो बस उसने पूछा था कि नंबर ऑफ अनपेड पी ऑर्बिटल सेम है कि नहीं है, तो इट इज द सेम, क्योंकि इसके अंदर अनपेड कितने हैं? Py अनपेड है और Pz अनपेड है, तो कितने ऑर्बिटल्स अनपेड है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है? 2 ऑफ देम, राइट?
और इधर भी अनपेड कितने हैं, देयर टू ऑफ देम, तो सेम है, ठीक है ओके। ठीक है। तो इसलिए इट इज द सेम, मतलब वही उसने उसने घुमा फिरा के चीज पूछी हुई थी। Basically, he wasn't looking at the electronic configuration, he was looking at the number of unpaired p electrons. अच्छा, ये वो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया जिसमें वो मतलब वही ऑर्बिटल्स हैं। उसने कहा which diagram shows the electronic configuration, there's an atom with 8 electrons, तो 8 electrons क्या होगा, it's going to be 1s2 2s2 और 2p में 4 होंगे, ठीक है। So that means the electronic configuration will have just 3 subshells. The first one is 1s, ठीक है। और रिमेंबर ये मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आप दो एरोस की तरह शो करते हो, एक वन पॉइंटिंग अपवर्ड्स, द अदर वन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, वो सबशेल को आप बॉक्स रिप्रेजेंट कर देते हो। सो दैट्स 1s, 2s will have 2 electrons and that's the 2p subshell, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मुझे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है फर्स्ट वाली या गलत है? वो सर सबशेल गलत है सर, गलत है सर। ठीक है, बी आंसर होगा क्योंकि 1s तो फुल है, 2s भी फुल है, जो p होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दैट मींस के पहले 1 1 करके सारे फिलअप होंगे, ठीक है, 2px 2py 2pz, और फिर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी दिस वन व्हिच इज बी। लास्ट वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और 2p के बाद क्या आता है, 3s2 आता है, राइट? ओके सही है। तो वो 3s2 तो चाहिए नहीं हमें, मतलब वो तो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग देयर, तो ये खाली होगा। अच्छा, ये हमने पहले कर लिया था। फिर था कि अच्छा उसने कहा which ion does not have a noble gas electronic configuration, ये तो आसान है कि आयोडीन ग्रुप 7 में तो दिस विल हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो अगले ग्रुप में चला जाएगा। रुबीडियम इज सर ग्रुप, आइडियन ग्रुप 7 में नहीं है सर। और किधर होता है? आईडी तो कंफर्म ग्रुप 7 में, ठीक है, आयोडीन ग्रुप 7 में, ठीक है। -1 होगा तो वो ग्रुप 8 में चला जाएगा ना, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स वो H2P6 बन जाएगा। अच्छा, रुबीडियम इज ग्रुप 1, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो वापस पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2 में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल गेट अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टिन जो है ना, दैट्स ग्रुप 4, तो उसका मतलब है कि ग्रुप 4 का मतलब है कि इट्स आउटर मोस्ट शेल विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना टिन का, वो S2P2 होगा, ठीक है, ग्रुप 4। इट विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट बी अचीव्ड। So that's going to be C. अच्छा, in which pair do both atoms have one electron only in an s orbital in their ground state? किसके पास s में एक इलेक्ट्रॉन होता है? कौन सा सर ग्रुप व्हाट का इज होगा? ग्राउंड स्टेट? जो नॉर्मल स्टेट है, जो हम अभी बात नहीं कर रहे, वो मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि अकेला एटम नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट्स नोन एज ग्राउंड स्टेट। मतलब जब एटम बॉन्डिंग करता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, कोई उसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है ना, क्लियर है? यस सर। तो सो मतलब वो जो अपनी नेचुरल स्टेट में होता है। हाँ, मतलब एक अकेला आइसोलेटेड एटम होगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ग्राउंड ठीक है, स्टेट। हाँ। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा था कि वो मतलब इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, तो ये भी होता है कि अगर आप उसको उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दो, यूवी रेज डिफरेंट तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू, दे कैन बिकम एक्साइटेड, दे कैन बिकम एनर्जेटिक एंड दे कैन मूव अवे, वो किसी हायर शेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट आयनाइज्ड, but the electrons can move from a lower energy state to a high energy state if you give them energy, if you give them enough energy. तो इसलिए यूवी रेज हार्मफुल होती हैं, because electrons gain a lot of energy from them and they go into excited state, ठीक है।
तो मतलब वो आयंस वगैरह बनना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूज करना, शेयर करना, दैट इज वहां पे जाके द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड काइंड ऑफ चेंज। मतलब ऑर्बिटल्स की शक्लें ही चेंज हो जाएंगी। मतलब एक एटम दूसरी साइड से आके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो मतलब ये है ना कि अगर लेट्स से मैं वैसे ही एक शो कर रहा हूँ, या हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि यू हैव अ हाइड्रोजन एटम, राइट? उसका ना एक इलेक्ट्रॉन ना इधर कहीं घूम रहा है, ठीक है, जस्ट showing what would happen eventually जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो the electron is randomly buzzing around the इस एरिया में, स्फेरिकल एरिया में। एक और एटम का न्यूक्लियस आता है, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को खींच के ना इट विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तब वो इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल रीजन तो नहीं ऑक्यूपाई करेगा ना, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग पुल्ड बाय सम अदर एटम, ठीक है, वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो द इलेक्ट्रॉन वुड स्टॉप बजिंग अराउंड इन अ स्फेरिकल ऑर्बिटल, वो बल्कि इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा एटम जो है ना, इट्स पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल एटम। तो ऑर्बिटल्स की शक्लें भी चेंज हो जाती हैं, वो एस एस रहेगा ही नहीं, मतलब एस रिप्रेजेंटेड एज स्फेरिकल ऑर्बिटल। तो तो ग्राउंड स्टेट इज व्हेन यू हैव जस्ट एन आइसोलेटेड एटम नॉट इंटरैक्टिंग विद एनीथिंग, यू नॉट गिविंग इट एनर्जी, तो वो ग्राउंड स्टेट है। जो भी हमने अभी पढ़ा ना, दैट इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इज दिस क्लियर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे और? यस और नो? नो सर। यस सर। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। तो रिमेंबर, ग्राउंड स्टेट जब भी आएगा ना, तो बस वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होती एटम की, उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सो व्हिच वन डू यू थिंक हैज, पहले तो बताओ कि एस में एक इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास होता है? हमसे ग्रुप 1 वालों में और कॉपर और क्रोमियम में। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का याद रखें, वो दो स्पेशल केसेस थे। तो इसमें लिथियम इज ग्रुप 1 एंड you've got chromium, so it's going to be D। और सर ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है? अभी तो पूरी डिस्कशन हुई थी। वो ग्राउंड, 1 मिनट लैग हो गया। अच्छा नहीं, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो तुम जितनी भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं की, अकेला एटम पड़ा हुआ है, उसके उसमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट होती है। जो भी हमने पढ़ा है ना, दैट इज ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? ओके। कि मतलब वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो बस अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है। ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ना उसने किसी के साथ इंटरैक्ट किया है, तो दैट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ओके, मतलब ओरिजिनल स्टेट जो है। हाँ, जो हमने पढ़ा है ना, वो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी तो आसान ही है। मैं वैसे ही देख लूँ, एक दफा गो थ्रू कर लूँ, फिर हम वो दूसरा थ्योरी के कुछ थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं कि अच्छा, ये तो खत्म ही हो गए क्वेश्चंस। थ्योरी के क्वेश्चंस मैं खोल लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। उसके भी खैर इसी तरह होंगे, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर ओनली। सर ये थ्योरी के अपने कहाँ पर शेयर किए थे? नहीं, थ्योरी के मैंने शेयर नहीं किया, वो मैं सर ये कर देता करेंगे हूँ। आप? हाँ, मैं ठीक है कर सर। देता हूँ। मैंने इनकी मार्क्स स्कीम भी शेयर करनी है, वो होपफुली मुझे आज याद है मैं इनकी। अच्छा, थ्योरी के अंदर कुछ नहीं है, वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। असल में आयनाइजेशन एनर्जी वाला तो हमने पढ़ा नहीं है, मैं खाली बस वो दिखा रहा हूँ कि अ, ये तो हमने किया था क्लास में ना, कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स किस साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे, इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स दे दिए, फ्री के 4 मार्क्स है। वो एक्सप्लेन भी करने को कहा है, भी एक्सप्लेन करो आंसर, तो आप बस बताओगे कि भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो उस साइड पे जाएंगे, वो इस साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे। प्रोटॉन जो होंगे वो इस साइड पे डिफ्लेक्ट होंगे, न्यूट्रॉन जो होंगे वो सीधे जाएंगे। तो आप उसके अंदर बता दोगे कि जी ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट। अच्छा, बाकी प्रोटॉन नंबर्स और इलेक्ट्रॉन नंबर्स ही पूछा मैं, जस्ट 1 सेकेंड, वो बॉक्स वाला क्वेश्चन मैंने देखना है। हाँ, ये वाला। सर आपने कहा था ये मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, रीसेंड कर दूंगा, आपने किया ही? नहीं, कौन सा वाला है? ये जो मतलब वर्कशीट है। नहीं, ये वर्कशीट मैंने उसके ऊपर पोस्ट की हुई है क्लासरूम में। ओके। एक्सक्यूज मी सर। तो ये क्या आपने असाइनमेंट वाली है ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो मैंने वर्कशीट पोस्ट की है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी।
एक सर सेकंड जो में अपने वो, सर एक तो असाइनमेंट आपने असाइनमेंट भी दी है ना। हाँ असाइनमेंट तो मैंने दी थी, वो तो बिल्कुल बेसिक सी थी। वर्कशीट, हाँ वर्कशीट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हाँ ये पोस्टेड है, इसको आप देख लेना, वर्कशीट के नाम से है वो। ठीक है, एक एक सर असाइनमेंट। हाँ जी, सर वो असाइनमेंट आप चेक करके वापस करेंगे या मार्क करेंगे उसे? मार्क करूंगा, अभी तो 6 लोगों ने खाली दी है। ठीक है, ओके सर। सर कौन सी असाइनमेंट? उस पर क्लासरूम चेक करो ना, क्लासरूम पे दी हुई है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो लाजमी चेक कर लेना। और ठीक है, अच्छा वो ये देख लेना, सैयद अली खास तौर पे वो गलत जगह पे वो असाइनमेंट पोस्ट कर दी है, उसको उसको चेक कर लेना। अच्छा चलिए, ये किधर की है हमारी, कहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे ये। अच्छा ये मैं बस एक वो करना चाह रहा था कि उसका वो दिखा दूं ताकि कोई क्यूरियोसिटी ना रहे, वो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, एनर्जी लेवल के हिसाब से ड्रॉ हुआ है। तो पहला सब शेल क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी 1s2। ठीक है, मतलब 2 है उसमें नहीं है, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, 1s होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 2s, और फिर ये 2p सब शेल होगा, यानी ये 2px, 2py और 2pz। तो उससे क्या है कि उसे बस लेबल करने को कहा था एनर्जी लेवल्स को ना। 2p के बाद कौन सा आएगा, 3s आ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से अब वो कह रहे हैं कि उसने कहा ईच टाइप ड्रॉ करो, कि उसने कहा 2 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, तो ऑब्वियसली एक एस है और एक पी है। तो एस ड्रॉ कर लो, वो तो स्फेरिकल होगा। पी ड्रॉ कर लो, उसे एक ही, तो ये हमने लेट्स से पी एक्स ड्रॉ कर लिया, इसको लेबल कर देते हैं, बल्कि एग्जैक्ट लेबल कर लेते हैं कि हमने 2px ड्रॉ किया, ये हमने लेट्स से 1s ड्रॉ किया। 2s में क्या फर्क होगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी स्फेरिकल एरिया में होगा बट लार्जर होगा साइज में। तो खाली ये करना था इसमें। फिर उसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने को भी कहा हुआ है, तो नाइट्रोजन इज 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स 1s2, देन इट्स 2s2, और फिर 7, तो 3 बचे हैं, 2p3। तो 2s भी फुल है और 2p में 3 है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि पहला एरो जो होता है ना, वो आप वैसे ही बाय कन्वेंशन ऊपर शो करते हो। ठीक है, और इसी तरह उसने ऑक्सीजन का कहा हुआ है, ऑक्सीजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो 2p4 होगा। तो 2p4 पहले एक एक करके फिल होंगे और फिर एक नीचे की डायरेक्शन में फिल होगा। तो दैट्स अबाउट इट। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरीके से भी शो कर रहे होते हैं, कभी कभार बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारा ये 2-3 तरीके में फिर बता देता हूँ। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह लिखने को कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स एनर्जी के साथ ये डैशेस बने होंगे, तो ये समझ जाना कि 1s जो है लोएस्ट है, फिर 2s है, देन यू हैव गॉट 2p। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उनको फिलअप करना है। ठीक है, और 2p तक ही आता है, इससे ऊपर कम ही जाता है वो। और या फिर वो इस तरह बॉक्सेस करके, जैसा पहले यहाँ पे एक जगह पे बॉक्सेस बने हुए थे, वो इस तरह शो करेगा। ठीक है, तो ये बस 2-3 तरीकों से ना रिप्रेजेंटेशन है। सो दैट्स अबाउट इट। ये सारा ना वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके अंदर ना वी कैन ऑल्सो डू, पहला वाला बड़ा बेसिक्स है, लेकिन उसको अच्छा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसको गो थ्रू कर लेना। जैसा ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बिहेवियर नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, तो डी होगा। तो ये सारे वो बेसिक्स हैं, किसके पास कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सो मोस्ट ऑफ इट इज काइंड ऑफ बेसिक, लेकिन बीच में जो कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो कर लेते हैं। वो जैसा सोडियम एजाइड की वो बात कर रहा है, NaN3, तो थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा कि Na के ऊपर व्हाट इज द चार्ज ऑन Na, इट्स +1। ठीक है, अब उससे कहीं पे आपको बताया नहीं कि देयर इज अ नेगेटिव एजाइड आयन, तो अब एजाइड आयन है क्या। सो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी दिस, अगर सोडियम +1 है तो ये जो पूरा जो दूसरी चीज है -1 होगा। वो -1 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसने कहा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स बताओ। सोडियम के पास बाय डिफॉल्ट 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो 3 सर नाइट्रोजन, 7 × 3 होगा, तो 21, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, +1।
ठीक है, तो 21 होंगे और -1 चार्ज है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे, 22 होगा। तो 22 होंगे, तो बी होगा। ठीक है, सर मुझे नहीं समझ आया कि एन के पास -1 चार्ज क्यों? नहीं क्योंकि वो है ना कि Na N3 है ना, तो ओवरऑल न्यूट्रल न्यूट्रल है ना। अब ओवरऑल जैसे NaCl है, NaCl ओवरऑल न्यूट्रल न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि Na+1 होता है, तो Cl क्या होगा? -1 होगा, राइट? क्योंकि उसने दिया हुआ है, उसने शो किया हुआ है कि ये न्यूट्रल है। इज दिस क्लियर? कि तो अब Na का तो हमें पता है कि Na हमेशा +1 होता है, मतलब वो ग्रुप 1 में होता है, इट्स ऑलवेज +1। तो दूसरी जो चीज होगी वो फिर -1 होगी। तो ये बेसिकली गेस करना था कि ये जो पूरी चीज होगी ना, क्योंकि उसने एजाइड आयन का बताया नहीं था कि वो है क्या ना, तो हमने खुद ही गेस कर लिया भाई ये होगा एजाइड आयन, क्योंकि सोडियम है। यस, लेकिन अगर एक एजेड एन का -1 और नीचे 3 है तो फिर तो ओवरऑल -3 नहीं होता रखा। नहीं नहीं, इसके ऊपर ओवरऑल -1 है, मतलब इस पूरी चीज के ऊपर -1 है। मतलब अगर अगर तो सोडियम +1 है और आप कह रहे हो कि हर नाइट्रोजन के ऊपर -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज, ये क्लियर है कि टोटल चार्ज फिर तो 0 नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि वो तीनों को मिला के ना कोई चीज बन रही है जिस पूरी चीज के ऊपर इट्स -1। सही है। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं। उसने कहा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास mr ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ क्लोरीन इज 72, व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स इन दिस सैंपल विल बी द सेम फॉर ऑल द एटम्स। अच्छा, अभी हमने वो आइसोटोप्स तो वैसे किए नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए ओ लेवल से। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कोई आइडिया? 2 सर, दो सर सर 2 होते हैं। दो ठीक है, होते वैसे हैं। अच्छा, वैसे उसका 35.5 लिखा होता है, लेकिन क्लोरीन 35.5 एक्चुअली कोई नहीं होता। ठीक है, या तो एक वो 35 होता है या फिर 37। 37 होता है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ क्लोरीन की जो मास है ना वो 72 बन रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो, और क्लोरीन याद रखना कि इट्स डायटोमिक, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों क्लोरीन्स की मास क्या होगी? अगर तो दोनों 35 हुए तो मास क्या बनेगी? 70 बनेगी। अगर उस सैंपल में दोनों क्लोरीन 37 होंगे तो मास क्या होगी? वो 74 होगी। तो 72 वो सिर्फ तब कब बनेगी? 72 वो बनेगी अगर एक क्लोरीन 35 हो और दूसरा वाला क्लोरीन 37 हो, यानी सर क्लोरीन का। रेडियस सेम होगा सर। हाँ, वो मैं डिस्कस करता हूँ इससे पहले। तो रिमेम्बर कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, रिमेम्बर अभी हमने आइसोटोप्स नहीं की है, मैं सिर्फ वो लेवल्स का ही वो कर रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को ज्यादातर को पता होना चाहिए क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 35 एंड 37। तो Cl2 का मॉलिक्यूल जो है वो 72 कब बनेगा? 72 वो बनेगा अगर एक क्लोरीन 35 हो और दूसरा वाला 37 हो। तो इसका मतलब है कि क्या चीज सेम होगी? आइसोटोपिक मास जो होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन का जो सैंपल होगा उसमें दोनों आइसोटोप्स की जो मास होगी ना, दैट वुड बी डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है? तो जी दैट्स गोइंग सर। टू बी, अच्छा, न्यूक्लियर नंबर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आइसोटोप्स में होता ही है यस। कि वो न्यूक्लियर नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, रेडियस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों के पास एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वो सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल एक जैसी होगी। सर यस, सर लेकिन जब प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है सर, तो अट्रैक्शन की वजह से सर वो रेडियस छोटा नहीं होता रहता? तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुआ ना, मतलब इसके पास भी 17 प्रोटॉन्स हैं और ठीक है सर, 17 ठीक है ठीक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके पास भी 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 न्यूट्रॉन का। तो बेसिकली काम ही कोई नहीं होता पूरे एटम में ना, किसी है। भी हाँ केमिकल फिर का। समझा गया। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अ, उससे क्या, Y3-1 कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ मास नंबर ऑफ 31। अब मुझे बताओ कि Y के पास जो न्यूट्रल Y है उसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 15 सर। ठीक है, 15 होगा, क्योंकि 3 माइनस का 18 है, तो उसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हुए। नॉर्मल वाई जो होगा ना उसके पास 15 होंगे। ठीक है, एंड इट्स 31, तो वो बस 15 एंड मतलब ए होगा कि 15 उसके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आता है। ठीक है,
अच्छा, in which species are the number of protons, neutrons and electrons all different? ये वैसी कोई बता दे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा। किसके पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सारे डिफरेंट हैं? सर बी सर। बी। सर बी। सर बी ठीक है, होगा। ठीक है। 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स और +1 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, सो दैट इज बी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, चले। अच्छा, वो कह रहे हैं बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन आइडेंटिकल कंडीशंस, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ particle is proportional to its charge to mass ratio, which is fairly obvious के ये रिमेंबर वो बीम वाला क्वेश्चन है कि बीम है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मतलब आगे ना एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट है लेट्स से, और नीचे बॉटम के ऊपर ना लेट्स से देयर इज ए नेगेटिव प्लेट। तो बीम जो होगी उसके अंदर, उससे कहा बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हमें नहीं पता कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट ही हैज टोल्ड अस कि उसकी जो डिफ्लेक्शन है ना दैट्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज। उससे कहा चार्ज टू मास रेशो। सो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। मतलब इफ समथिंग हैज अ चार्ज ऑफ +2 तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, राइट? अगर उसके ऊपर चार्ज +10 होगा तो और भी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? क्लियर है ये? सर एक दफा रिपीट कर दें। नहीं, मैं खाली कह रहा था कि चार्ज पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन होगी अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करेंगे प्लेट्स के थ्रू, तो वो उनके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी। कि अगर एक चीज के ऊपर चार्ज ही कोई नहीं है, न्यूट्रॉन जा रहा है, वो 0 चार्ज है, डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। और फिर एक और चीज है, उसके ऊपर चार्ज जो है ना वो +10 है, तो वो 1 सेकेंड। अच्छा, अब एक चीज के ऊपर चार्ज +10 है तो उसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा है ना। ये क्लियर है बात? यस सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर अगर इसका वो चार्ज 10 है तो सर मैथ भी इसका 10 ही होगा, तो डिवाइड होकर 1 नहीं आ जाएगा आंसर? नहीं नहीं, वो मैथ्स की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा ना। कि लेट्स से मैथ्स, अभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट्स से मैथ्स फिक्स्ड है, मैं तो अभी खाली चार्ज की बात कर रहा था। ठीक है, वहां तक तो क्लियर है ना? ये सर वहाँ तो क्लियर है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और मैथ्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर वो हैवी होगा, अगर वो बहुत हैवी होगा तो उसको डिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो बहुत लाइट होगा तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी कम मास होगी, मतलब एक नॉर्मल सी चीज, आप फोर्स अप्लाई करो एक लाइट ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाई करोगे जैसा एक टेनिस बॉल, उसको फेंकोगे दूर जाएगी। वही फोर्स आप एक बॉलिंग बॉल पे अप्लाई करोगे तो वो इतना मतलब वो करीब ही गिरेगी, तो उसके ऊपर इफेक्ट बहुत कम होगा। तो डिफ्लेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो ये तो क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये, ठीक है, मैं आगे वाला क्वेश्चन ट्रिकी है। ठीक है, मुझे खुद भी इसी में वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। ठीक है, सो रिमेंबर इज सेइंग कि प्रोटॉन्स, पहले तो बताओ प्रोटॉन्स किस साइड पे जाएंगे? नेगेटिव की तरफ ना। तो ये बीम आई है और ये प्रोटॉन गए, वैसे इनको सीधा जाना चाहिए था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती। तो वो कह रहे हैं कि भाई एंगल जो बने ना प्रोटॉन का 15 डिग्रीज, प्रोटॉन्स आर +1। अच्छा, प्रोटॉन की मास क्या होती है? प्रोटॉन की मास, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, +1, और उनकी जो मास होती है ना वो भी 1 होती है। तो मतलब उनका चार्ज टू मास रेशो क्या आ रहा है? दैट्स 1। क्लियर है? तो अगर चार्ज टू मास रेशो, तो हमें पता लगा कि
कि अगर चार्ज टू मास रेशियो 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन कितनी डिग्री की होगी? 15 डिग्री की, और मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये बात क्लियर है कि प्रोटॉन्स उससे क्या आर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। और मैंने प्रोटॉन का ना चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। सर समझ नहीं है सर। नहीं, मैं अच्छा ये इस स्टेटमेंट को देखो, प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज, राइट? तो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे ना, तो उससे क्या है, डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज, यानी ये उनका ना एंगल बन रहा है 15 डिग्रीज का। तो मैंने प्रोटॉन्स का ना चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया। प्रोटॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो क्या आता है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1 होता है। प्रोटॉन की मास क्या होती है? 1 होती है। तो 1/1 क्या आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब है कि जब आपका चार्ज टू मास रेशियो 1 आएगा ना, तो डिफ्लेक्शन कितनी डिग्री की होगी? 1 डिग्री की। उसने कहा है कि डिफ्लेक्शन 15। इज, हाँ, उसने कहा है कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू मास रेशियो, यानी इसके मुताबिक, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है इसका। इसके मुताबिक अगर आपका चार्ज टू मास रेशियो 2 आता, तो डिफ्लेक्शन कितनी डिग्री की होती है? 30। 30 सर। 30। और 30। अगर 3 होता तो 45 होता, ठीक है? तो 3 होता तो वो फिर 45 डिग्रीज होता, राइट? अच्छा, सो एनीवेज, प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो मैंने उनका चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया, विच इज 1, और मुझे पता लग गया कि भाई वो 15 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है वो ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि देयर इज अ पार्टिकल दैट इज y एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ -5 डिग्रीज, ठीक है? अच्छा, एक तो पहली चीज है -5 डिग्रीज। -5 डिग्रीज पे कंफ्यूज नहीं होना। -5 डिग्रीज का मतलब है कि वो बस ऊपर वाली डायरेक्शन में ऑपोजिट डिफ्लेक्ट हो डायरेक्शन। रहा है, ठीक है? बस वो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है -5 डिग्रीज। तो एक तो पहले तो ये पता लगाना है कि y के ऊपर चार्ज क्या होगा। क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव। वो क्योंकि वो नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट्स। तो एक हमें पता लग गया कि y जो है ना वो होना चाहिए नेगेटिव आयन, जो भी होगा इट शुड बी अ नेगेटिव आयन, ठीक है? तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, वरना तो उसने भी नीचे आना था, ठीक है? अच्छा, तो y इज अ नेगेटिव स्पीशी। अब वो कह रहे हैं बाय एन एंगल ऑफ -5 डिग्रीज। अब मैं इसी रेशो को जरा एक्सट्रैपलेट करूंगा, ठीक है? -5 डिग्रीज, 15 डिग्रीज। तो अगर 5 डिग्रीज डिफ्लेक्शन होनी है तो मास टू चार्ज रेशियो 1/3। क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 1/3। यही सर प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना, इसको मैंने सर लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो प्रोपोर्शन का जो है ना सर, पार्टिकल की जो प्रोपोर्शन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, सर दैट इज आइडेंटिकल इन आइडेंटिकल कंडीशन सर। लेकिन सर यहाँ पर तो कंडीशन सेम नहीं है। मतलब जिस कंडीशन में प्रोटॉन डिफ्लेक्ट हुआ था कि उस वो कंडीशन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा ना सर। क्योंकि नहीं नहीं, इसमें नहीं क्योंकि नहीं, सर देखें। उसमें सिर्फ, चलो उसको मैं माइनस भी बीच में डाल देता हूँ। सिर्फ एक माइनस साइन ही आया ना, तो बस चार्ज उसका नेगेटिव है, दैट्स इट, ठीक है? मतलब डिफ्लेक्शन की नहीं वैल्यू में तो सर, भी जो फर्क नहीं पड़ेगा सर ना। जो प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज है सर। नहीं अच्छा, सर, जो नहीं प्लेट्स के क्रॉस वो वोल्टेज है सर, वो चेंज नहीं है। नहीं नहीं, वो आइडेंटिकल है। वो उससे लिखा हुआ है आइडेंटिकल कंडीशंस, ये लिखा सर हुआ है, कैसे सर? ये इधर लिखा अच्छा हुआ है ठीक ये। है सर। सर ऊपर लेकिन सर लिखा फिर हुआ है इन इलेक्ट्रॉन की एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिकल। क्या चीज? लेकिन सर फिर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन सर लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हाँ सर हाँ, प्रोटॉन से कम कैसे हो सकती है? यार वो पूरा अभी अभी आयन तो हमें डिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें पूरा हमें तो एटम पता ही नहीं डिफ्लेक्ट है कि कर वो, रहा है इंक्लूडिंग हाँ प्रोटॉन्स अभी, और इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, हमें तो अभी पता ही नहीं है वाई है क्या, ठीक है? हमें वाई के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? हमें बस पता है कि वाई जो है ना, वो एक तो उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमें पहला पता है। तो इसका मतलब है वाई कोई नेगेटिव चीज है। अब ये नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉन है या वो आयन है या क्या चीज है, और वो प्रॉब्ली आयन ही होगा, क्योंकि उसने वाई की जो कॉम्बिनेशन दी हुई है ना, कॉम्पोजिशन दी हुई है, वो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारे हैं, ठीक है? तो
हमें बस ये पता है कि y जो है ना वो उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी उसका जो साइन, चार्ज का साइन होगा ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो तो उसके रेशो के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो 15 डिग्री अगर डिफ्लेक्ट होता था तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 1 आनी चाहिए थी। अगर वो 5 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस चीज की वैल्यू जो है ना वो क्या आनी चाहिए, 1/3 आनी चाहिए। क्लियर है? तो मैंने बस ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 1/3 आ रही है। ये पॉइंट क्लियर है कि 15 डिग्री डिफ्लेक्ट होने पे रेशो जो बन रहा था वो 1 बन रहा था। अगर 5 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रही है तो बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये जो रेशो होना चाहिए चार्ज टू मास, दैट शुड बी 1/3। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि और किसी का माइक ऑन है। सर 3 इसका मास है 1/3 में। कौन सा? 3 नहीं, इसके माइक स्पीकर ऑफ कर लो जरा एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 1/3 इस पूरी चीज की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसे प्रोटॉन का बताया हुआ था कि प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो जो है ना दैट वाज 1/1, और उसकी डिफ्लेक्शन जो आ रही थी वो 15 डिग्री आ रही थी। तो 5 डिग्री अगर डिफ्लेक्शन होगी तो इस चार्ज टू मास का जो रेशो आना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी 1/3। ठीक है, मतलब इस पूरी चीज की वैल्यू जो है ना वो 1/3 आनी चाहिए थी। अब उसमें मुझे नहीं पता कि मास की क्या वैल्यू है, चार्ज की क्या वैल्यू है, लेकिन बस ये जो पूरी चीज है ना इसकी वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। क्योंकि 15 डिग्री डिफ्लेक्शन के ऊपर ना इसकी जो वैल्यू थी ना दैट वाज कमिंग आउट टू बी 1। तो अगर 5 डिग्री डिफ्लेक्शन है तो यहां पे जो वैल्यू होगी ना दैट शुड कम आउट टू बी 1/3। तब हमने देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 1/3 आ रही है। तो फर्स्ट वन मुझे बताओ इसकी मास क्या आ रही है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। अब मैं सारों का ना मास टू चार्ज रेशो निकाल रहा हूँ, चार्ज टू मास रेशो। फर्स्ट वन का मुझे बताओ कि मास क्या आ रही है, व्हाट्स द मास? 3 सर हम अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का 0 मास है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन 1/1836 होता है तो वो मतलब 0 ही हो गया ना तकरीबन, ठीक है। यस सर, तो तो इसका तो सर 3 मास आएगा। हाँ, तो इसकी मास क्या होगी, दैट वुड बी 3। अच्छा, इस आयन का चार्ज मुझे बताओ, चार्ज क्या आ रहा है इसका? सर 1 -1 -1 सॉरी। -1, क्योंकि प्रोटॉन +1 है और ये मतलब ये +1 है, ये -2 है, ये 0 है। तो टोटल चार्ज जो है वो -1 आएगा। तो ये एग्जैक्टली वही आ रहा है, ठीक है। वो और नेगेटिव भी आ रहा है। वो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो चार्ज, हमारा आयन का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की रिफ्लेक्शन वही आ रही है 1/3, और वो 5 डिग्री और उल्टी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट। सर यस। सर आपने ये कैसे डिटरमिन किया सर कि y नेगेटिव आयन है सर, वो दोनों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? नहीं, उसने कहा था कि प्रोटॉन 15 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वाई के बारे में उसने कहा था कि वो -5 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब सर अगर वो पार्टिकल y के अंदर भी प्रोटॉन है सर, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नहीं, भी लेकिन रिफ्लेक्ट कर नहीं, लेकिन ओवरऑल वो एक चीज है ना, ओवरऑल उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है ना, -1 है ना। रहा है। ठीक है सर। मतलब वाई जो सर पार्टी जिसमें कम डिफ्लेक्शन हो सर वो चार्ज होता है? क्या? सर जिसकी कम डिफ्लेक्शन हो वो चार्ज होता है सर? सर ये कैसे पता आपको नेगेटिव है? नहीं, सारों को इकट्ठा करो ना कि देखो एक एटम है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब ओवरऑल चार्ज के साथ पता लगता है। मतलब सर इस प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? हाँ, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसी के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये सारे इकट्ठे इसी के अंदर है, मतलब इस वाई के अंदर ही है। ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक एटम है या एक आयन है, ये सारे उसी के अंदर है। तो उसके सर अंदर हाँ जी। सर तो मतलब जो कैलकुलेशन होती है सर, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को मैथ से कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते? देखो, इस केस में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/1836 वो वैसी बहुत छोटी वैल्यू आ रही है ना, तो वो 3 के करीब ही आएगी ना, 3.00 कुछ आएगा ना। अगर तो मतलब वो फायदा कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन को बीच में डालने का, ठीक है। मतलब वैसे तो कंसिडर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की मास होती है, लेकिन इधर करने का फायदा कोई नहीं है कि मतलब वो बीच में 1/1836 डाल दो तो 3.001 आ जाएगा। उससे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला ना। यस क्लियर है सर। बात? यस अच्छा, सर। सेकंड वाले का भी जल्दी से बता दो, क्लास खत्म होगी। सेकंड वाले का बता दो कि इसकी टोटल चार्ज क्या आ रहा है। -2/6, तो -1/3 आएगा।
तो इसका भी माइनस, तो इसकी भी डिफ्लेक्शन वही होगी, 1/3 आ रही है Yes, sir. और माइनस आ रही है तो 5 डिग्रीज, ठीक है। तो सेकंड वाला भी ठीक होगा। थर्ड वाले का बता दो कि थर्ड वाले का गलत क्या है होगा। सर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो कंसीडर ही नहीं थर्ड वाला तो होगा। गलत है। हाँ अच्छा, वो वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है तो वो 1 तो over 9. डिफ्लेक्ट, हाँ वो डिफ्लेक्शन ही उसकी प्रोटॉन की डायरेक्शन में होगी तो वो भी गलत होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो नाउ। प्रेजेंट लिख दो यहाँ पे चार्ट के अंदर सारे। सर हाँ जी, सर आपने इस तरह assume किया कि सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे सर तभी इनकी कम डिफ्लेक्शन हुई है एंड इट्स अ नेगेटिव आयन। नहीं कम डिफ्लेक्शन तो मैंने अज्यूम नहीं की। सर तो आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स इसमें? अच्छा वो तो इधर से पता लगे ना, देखो उसने कहा था प्रोटॉन 15 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो प्रोटॉन इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो y था वो कह रहा है वो -5 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है कि वो नेगेटिव आयन है। सर पार्टिकल y itself is an electron only, right sir? नहीं यही तो हमें, y इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन, y इज एन आयन। क्योंकि देखो y की कॉम्बिनेशन देखो ना, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सब समझ चीजें। आ गई सर, मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी वो द प्रोटॉन ठीक है, लिखा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर, ओके। चलिए ठीक है। मेक श्योर यू राइट प्रेजेंट, चार्ट के अंदर सारे प्रेजेंट लिख लो और देन यू कैन Love ऑल is, sir. लीव। हाफिज ठीक, सर। ओके, हाफिज। हाफिज सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।